ہمارے ساتھ قابل احترام محترم حاجی لشکری رحسانی صاحب. حاجی صاحب, بلوچ بیلٹ ہو یا چاہے پشتون بیلٹ ہو, ایک بہت بڑا ایک مسئلہ یہاں پر ہمیں درپیش ہے. ان کو حاجی صاحب حل کون کرے گا؟ قوم حکومت بناتا ہے جی, عوام, جی. یہاں حکومت کہیں اور بنتا ہے. حاجی صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا ہمارے سیاستدان یا سیاست جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے, وہ آزاد نہیں ہے, اوپر کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے. تو اوپر کی طرف سے کبھی آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے؟ دیکھیں 1977 16 ستمبر کو میرے والد صاحب اس گھر سے ان کو آرمی والے لے گئے, قید کیا. آپ نے کہا کہ یہاں پہ الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی ہیں, جو آپ نے بھی جتنی بھی بات چیت کی, جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے یہی باتیں چل رہی ہے. تو آخر اختیار کب ملے گا؟ اختیار کب ملے گا یہ سوال نہیں ہے. ایسا سب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, تو آپ کے نظر میں سی پیک کیا ہے؟ ہمارا جو کمپنی بہادر ہے جی جی, کہ ہمیشہ ایسے بڑے بڑے ڈرامے ایجاد کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان خوشحال خان. ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے. اہم صوبے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی ایک خوبصورت صوبہ ہے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان میں سمندر ہے, کوئلہ ہے, تیل ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ اللہ پاک نے قدرتی وسائل سے اس صوبے کو نوازا ہے. یہ ہوئی ایک خوبصورت تصویر بلوچستان کی. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو بلوچستان محرومیوں کا شکار ہیں. یہاں کے لوگ بے روزگار ہیں, یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے. ناظرین, آج کا پروگرام بہت اہم ہے. جیسے کہ آج کا پروگرام بہت اہم ہے, اسی طرح ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان بھی انتہائی اہم شخصیت, آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. ان تمام مسائل پر گفتگو ہوگی. تو ہمارے ساتھ ہے انتہائی قابل احترام محترم حاجی لشکری رحسانی صاحب. حاجی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. سب سے پہلے تو ہم حاجی صاحب سے حاجی صاحب کی ذاتی زندگی پر کچھ سوالات کریں گے, کچھ گفتگو کریں گے. ان کے علاوہ بلوچستان میں سب سے اہم جو مانا جاتا ہے قبائلی سسٹم, ہم اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ تیسرے اور آخری مرحلے میں ہم بلوچستان کی جو انتخابی سیاست ہے اس پر ہم بات کریں گے. صاحب, ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا بنیادی سوال سب سے پہلے آپ سے متعلق ہے کہ آپ کی صبح سے لے کر ابھی پروگرام سے پہلے آپ کا جرگہ چل رہا تھا, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے, ان کے مسائل سن رہے تھے, تو صبح سے لے کر شام تک آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, کوئی ذاتی زندگی خاص میرا ہے نہیں. جی, اکثر گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. جی, جو رات کو مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے یا کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں, جی, یا آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, جی, جی, مختلف ایشوز پہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو جی, سمجھ سکتے ہیں, اور تھوڑا بہت کوئی ٹیلی ویژن دیکھنے کا موقع ملتا ہے. صبح جب ہم اپنے بیٹھک میں آتے ہیں جی, تو مختلف قسم کے مسائل کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے سوشل ڈاکٹر. مثلا ایک پسماندہ صوبہ یا ایک پسماندہ سماج جہاں ایک شخص کا کوئی ایشو ہے عدالت میں اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وکیل جی, کہاں ملتا ہے اور کیا فیس ہوتا ہے اور اس کو کیسے تلاش کیا جائے, اور وہ اسپیسیفک جو ایشو پہ کہاں وکیل ملے گا, راستہ ان کو نہیں پتہ, رہنمائی ہم ان کو کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ کئی ڈاکٹر ہے یا بچوں کے اسکولوں میں ان کا داخلے ہیں, اس قسم کے چھوٹے موٹے ایشوز ڈیلی بیس پہ ہم حل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ کہیں کسی کا بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, بل کا مسئلہ ہے, لوگ سمجھ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے سماج, ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کام ضوابط سے نہیں روابط سے ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہم سب کا, پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, روابط سے ہی معاملات پش سے ہوتے ہیں. تو ڈیلی بیس پہ ایک تو یہ کام ہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تنازعات ہیں, لوگوں میں غربت بہت ہے, عدالتی نظام پیچیدہ ہے, مہنگا ہے. تو کوشش کرتے ہیں ایک دن کا حصے میں ہم ایسے فیصلے رکھیں کہ لوگ مفت میں اور جلدی ان کو فارغ کریں, ان کا مسئلہ حل کریں. یہ بھی ہمارا ایک پورے دن کا ایکٹیویٹی میں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مختلف پولیٹیکل ایشوز پہ ہم
अपना एक फिक्री नशिस्त भी रखते हैं। जी हमारे साथी आते हैं और डेली इश्यूज, मसलन आज अखबार में अगर कोई ख़बर छपा है, मसलन आज अखबार की हेडलाइन ये है कि वज़ीर आज़म हाउस में जो बातचीत हुआ है वज़ीर आज़म का वो लीक हुआ है। आज हम इस पे बात करेंगे और इस पे हमारा डिस्कशन होगा। इस किस्म के इश्यूज़ हैं और डे टू डे इश्यूज़ के साथ साथ हम अपने सूबे के और ख़ित्ते के तमाम मामलात भी बात करते हैं। बिल्कुल हाजी साहब, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन मैं शुरू में जहाँ तक मेरी मालूमात में एक बात है कि आप का किताबों से दिली लगाव है, आप एक अच्छे रीडर हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों से प्यार करते हैं। तो आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं? दीनी पढ़ते हैं, फ़लसफ़ी की पढ़ते हैं, तारीख़ी पढ़ते हैं, और आपका फेवरेट जो राइटर है वो कौन सा है? देखिए 1977 16 सितंबर को मेरे वालिद साहब इस घर से उनको आर्मी वाले ले गए, कैद किया उनको। जी ठीक है, हम साथ साथ बुरानों में रहे और पढ़ते भी रहे, मगर मुझ में एक एहसास ये हुआ कि मेरा तालीम मुकम्मल हुआ नहीं। जी तो फिर मैं ज़रा अपने ज़ाती नॉलेज के लिए उस तशनगी को कम करने के लिए किताबों में जी मैं जाता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। जी और मैंने किताब दोस्त मूवमेंट भी शुरू किया है। बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में छोटे बड़े लाइब्रेरियों में, यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरी में कोई 50-60 हज़ार किताबें हमने गिफ्ट की, अभी तक हमारे पास है। माशाल्लाह किताबें आ रही हैं। माशाल्लाह। ये एक तशनगी था और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे लोग हैं जी उनमें ये कमी ना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ जी। अपने हिस्से का किताब लोगों तक पहुँचाता हूँ। माशाल्लाह। मैं बेसिकली तारीख़ का किताब देखता हूँ, उसको अच्छा। पढ़ता हूँ। मजहबी इश्यूज़ जो हमारे और आपके सामने उठते रहते जी, हैं जी। उनको मैं स्टडी करता हूँ। जी। मुख्तलिफ जो बड़े उलमा जी, हैं जी। वो अपना जदीद जो इश्यूज़ है उस पर अपना राय लिखते हैं, किताब उन पे, उसको मैं देखता रहता हूँ। जी, जी। जोग्राफिया मेरा जी जी पसंदीदा एक मौजू है, उसकी तरफ ज़्यादा मेरा तवज्जो होता है। जी, जी। मुख्तलिफ बाज़ औक़ात कोई ऐसे दिलचस्प मसलन नए साइंसी दरियाफ्त जी जी कायनात में, ज़मीन में या ज़राअत के बारे में, जी मुख्तलिफ इश्यूज़ को मैं स्टडी करता रहता हूँ। माशाल्लाह, और मेरा ये कोशिश होता है कि हम जब शाम को दोस्त बैठते हैं, जो मेरा हासिल ज़िंदगी है इतने अरसे में जो मैंने हासिल किया वो मेरे साथी और दोस्त हैं, तो शाम को जब हम खाने पे या एक कप चाय पे बैठते हैं, जी, जी। ये मेरे लिए सबसे कीमती वक्त मेरे ज़िंदगी का होता है। बेहतर। तो हम किताब पे खुसूसन या किताबों पे या किसी मौजू पे हम खुसूसन बात करते हैं। माशाल्लाह। उसके साथ फिर पॉलिटिक्स ज़रूरी है, ठीक वो है। हमारी ज़िंदगी के हिस्सा हो, उस पर भी बात होती है। ठीक है हाजी साहब, अगर हम एक तरफ देखें कि बलूचिस्तान में माशाल्लाह पहले के मुकाबले में आज जो हमारे बलूचिस्तान के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो तालीम की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और कबायली बेल्ट की मैं बात नहीं कर रहा, हमारे जो अंदरूनी बलूचिस्तान जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसमानदगी है तालीम के हवाले से। स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के कोर्स के अलावा जो हमें जो किताबें पढ़ाई जाती है उनके अलावा जो इस्लाही किताबें, जैसे मैंने जिक्र किया तारीख़ी, फ़लसफ़ा और दीनी और इस तरह बहुत ज़्यादा किताबें, क्वेटा में तो फिर भी एक अदद लाइब्रेरी वगैरह मिल जाती है, सरकारी हो या फिर जैसे आप जैसे लोग किताबें लोगों में तकसीम करते हैं। अगर हम कबायली बेल्ट की बात करें या चाहे पश्तून बेल्ट हो चाहे बलूची बेल्ट हो, अंदरूनी बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, वहाँ पर तो बिल्कुल लोगों की दोस्ती किताब के साथ है ही नहीं, वो किताब को जानते ही नहीं कि किताब होता क्या है। तो अगर इस तरह सूरत हाल रहेगी, इतनी नाजुक सूरत हाल, तो अगर हमारे नौजवान जो हर मुल्क उस पर फ़ख्र करता है कि हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद इतनी है, अगर हमारे नौजवानों की तालीमी लिहाज से अगर ये हालात रहेंगे तो फिर हमारा बलूचिस्तान, हमारे लोग, हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह से वालिदैन से करना चाहता हूँ। जी जी। वालिदैन अपने बच्चों को इसलिए ऐसे तरबियत ज़हन साजी ऐसे करते हैं कि उसने पढ़ के नौकर बनना है जी और नौकरी किसी कीमत पे हो, जी, यानी नकल और चीटिंग करके डिग्री हासिल करे, बस किसी तरह डिग्री हासिल करें। जी, उसके बाद फिर एक रुश्वतखोर ऑफिसर बने। तरबियत, ज़हनी तरबियत ऐसा होता है। सबसे पहले ये वालिदैन अपने समाज के, कौम के वसी तर मफाद में बच्चे को डिग्री हासिल करने के बजाय इल्म हासिल करने का तरबियत दें, उनका ज़हन साजी करें कि एज ए कौम हम एक आलिम कौम हो, एक मुलाजिम कौम ना हो। एक तो ये है कि मुलाजमत के लिए हम पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो शख्स मुलाजमत के लिए पढ़ेगा या पढ़ाएगा फिर वो नौकरी करेगा और नौकरी में वो पैसे कमाएगा, क्योंकि उसका टारगेट पैसे कमाना। ये एक बहुत
समाजी एक ख़तरनाक बुराई हमारे सोसाइटी में है कि हम बच्चों का तरबियत इल्म के हवाले से नहीं करते हैं, हम डिग्री के हवाले से करते हैं। तो ये है। साथ साथ ये कि आज डिश का दौर भी आ गया है, जी जी, सोशल मीडिया का दौर भी है, और सोशल मीडिया में अक्सर लोग वक्त का ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर आप दुनिया को देखें कि यूरोप को आप देखें जो तरक्की याफ्ता और एक स्टेबल मुल्क है, और उसने कई जंगों के बाद एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। वहाँ लोग जब बैठे होते हैं, अमूमन वो मोबाइल उनके हाथ में नहीं होता। अमूमन अगर आप तस्वीर देखें, ये थर्ड वर्ल्ड के ममालिक, खुसूसन पाकिस्तान में अगर 20 लोग बैठे हैं तो 19 के हाथ में मोबाइल हो गया। इसका मतलब है हम कुछ ना कुछ खुराफात देख रहे होते हैं, और आपस में हम एक दूसरे के साथ सामने तो बैठे रहते हैं, मगर ज़हनी तौर पे हम कहीं और होते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को पहुंचा है। होना ये चाहिए कि जो साहिब सरवत लोग हैं, गनी लोग हैं, मुख्तलिफ गाँव में, इलाकों में किताब दोस्ती का जो कल्चर है उसको डेवलप करने में अपने इलाकों में छोटे बड़े लाइब्रेरी कायम की। इसीलिए मैंने ये सोचा कि हम सोशल मीडिया में कोई शख्स कहीं भी बैठा है, वो अपना नुक्ता नज़र आपके गांव, आपके घर, आपके जहन, आपके नौजवान में अपना फ़िक्र पहुंचाता है। ऐसा हमने खुद अपना फ़िक्र या अपना कल्चर डेवलप नहीं किया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें ये होना चाहिए कि हम फ़िक्री नशिस्त हर गांव में, हर जगह किसी अच्छे किताब पे भी बहस करें, अपने हालात पे भी बात करें, और डिस्कस करें ऑथेंटिक किताबें, जो मुसद्दिका किताबें जो किसी इदारे से जिसका छाप होता है उसको हम पढ़ेंगे तो फिर हम यकीनन उसका जवाब भी लिख सकेंगे। किसी बात का सवाल का जवाब जब हमारे जहन में आएगा हम भी उसको लिख सकेंगे। एक तो ये होना चाहिए। साथ साथ मेरा एक आइडिया था, मैंने इलेक्शन का जो मंशूर था पार्टी का, उसको मैं चेयर कर रहा था, तो मैंने एक उसमें मंशूर में एक चीज़ रखा था कि तमाम डिस्ट्रिक्टों में, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रेजिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी कायम किया जाए। रेजिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? मसलन एक डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज के गांव से बच्चे स्टूडेंट जब रिसर्च करने, अपने तालीम हासिल करने उस रेजिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी में आएंगे तो वहाँ सोने का भी जगह हो, वहाँ गुस्लखाना हो वगैरह, और लाइब्रेरी हो ताकि बच्चे रात को वहीं सोएं और खाना अपना जहाँ से खाएं। एक कल्चर ऐसा डेवलप हो, और उसको मैं एक इल्मी और तालीमी इनकलाब समझता हूँ। आपके इस अहम चैनल के तवज्जुह से मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मशवरा देता हूँ कि साथ साथ अगर वो ये नाली और ट्रांसफार्मर और जो है PSDP का पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट का है। एज ए कॉम बनाने के लिए रेजिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी हर MPA को चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट में कायम करे, जिसको खुद इंतज़ामिया संभाले, किसी का डायरेक्ट पॉलिटिकल असर भी उस पर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इर्द गिर्द के दूर दराज के गांव जिनके पास किताब का सहूलत नहीं है, वो उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके वहाँ सो भी सकेंगे, अपने इदारे से कोई लेटर लाएं और वहाँ पढ़ भी सकेंगे।